you already know what is SAP. Hmm. Now question is that what is a finance and controlling. आप ऑलरेडी अपनी जो भी जॉब टास्क है उसको परफॉर्म कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, सिस्टम में ट्रैकिंग कर रहे हैं, जिससे Hmm. कि आपके पास बिजनेस की जो ट्रांजेक्शंस डेटा है, कंट्रोल्स हैं, जिसको Hmm. भी आपको परफॉर्म करना है, यू आर डूइंग इट, राइट? Yes, sir. Same is here for the SAP FICO, that is Hmm. a finance and controlling. FI stand for the finance and CO is for the controlling. Yeah. Okay. Hmm. Just wait a minute. I'm just going to share one screen with you. Hmm. Then we'll let you know what all are the pointers, what all are the activities which we are going to cover it here. Right. SAP, you know it already doing a job or doing a performing some task is there. I'm skipping it. That is also I'm skipping it. I'm directly moving. You already know SAP is having a multiple modules are there. Yes. Hmm. Now, landscape. Hmm. In a landscape, we can say the SAP is having a three more commonly the we are going to use a three different type of landscape is there. That is a development, quality, and productions. That we can say the SNR, QNR, and productions. In a Okay. development server, we are just going to configure anything is there. In a Hmm. quality server, we are going to test anything. And the production server where the live data is going to capture. Yes. Hmm. Now, in SAP FICO, now question is that in SAP FICO, what all are the pointers which we are going to learn? Hmm. That means in SAP FICO, we are going to learn the basic setting, general ledgers, accounts payable, Hmm. automatic payment program, account receivable, dunning, asset accounting, controlling area, GST and TDS. That means multiple pointers we are going to learn it here and step by step. Hmm. The setup is here, which we are going to learn it. In a basic setting, how we may go and start this server, how we go and define the company code. That's the basic steps. Means before performing of the any activities. अगर हम Hmm. कोई भी एक्टिविटीज एक्शन परफॉर्म करते हैं सिस्टम में, उसको परफॉर्म करने से पहले हमें कंपनी का इम्प्लीमेंटेशन सेटअप करना पड़ता है. Hmm. दैट इज अ सेटअप जो हम परफॉर्म करेंगे. कंपनी क्या है, कंपनी कोड क्या है, बिजनेस एरिया क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है. जब कंपनी फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लर्न कर रहे हैं, दैट मीन्स उस कंपनी कोड में किस टाइप का फाइनेंशियल ईयर सेटअप होगा. either that is April to March or that is Jan to December, August to July, what type of the financial setup we can have. ठीक है. And already you are supporting MM. And MM also, we are just opening up posting periods. Whenever we are going to perform the goods receipt entries, at that time, we may go and perform that kind of the activities or setup. That Right. means the periods is there. Same as Yeah. here, FI period is also there. Based on that, we'll go and make it as a open and close the FI period in SAP system for the particular company code or the particular variant. मे बी पॉसिबल जो वेरिएंट हमने एक ओपन किया हुआ है वो वेरिएंट मल्टीपल कंपनी कोड के साथ टैग है, तो Hmm. मल्टीपल कंपनी कोड के साथ वो एनेबल हो जाएगा. सिंपल कॉन्सेप्ट है. तो ठीक है. लाइक दैट मल्टीपल जो कॉन्फ़िगरेशन लेवल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वी आर गोइंग टू परफॉर्म दैट. जो स्मॉल स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्मॉल स्मॉल चीजें जो एक्टिविटीज हैं, कस्टमाइजेशन है, वी लर्न इट. एंड आफ्टर दैट जीएल अकाउंटिंग, जनरल लेजर. Hmm. अगर हम सिस्टम में बाउचर एंट्रीज, रिकंसिलिएशन एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, किसी भी टाइप की एंट्रीज अगर हम परफॉर्म करने चाहते हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ द एंट्रीज वी मे गो एंड परफॉर्म इट. बिफोर परफॉर्मिंग ऑफ द एंट्रीज वी नीड टू हैव द लेजर्स. क्या चाहिए? लेजर चाहिए हमें. Right. Ledgers, how we may go and create the ledgers. Ledger means book of accounts. अब ledgers को हमें create करना है, book of accounts create करने हैं. How we may go and create the ledgers. Posting of ledger. SAP में multiple entries setup होते हैं. Hmm. Posting, hold, park, reversal, post a hold document, post a park document, multiple type of entries हैं जो कि हम सिस्टम में परफॉर्म करने वाले हैं. We'll go and track that. Right? Okay. Next is reports.
लेजर लेवल रिपोर्ट, हम्म, अगर हमें लेजर लेवल रिपोर्ट देखना है, परफॉर्म करना है, तो वो भी हम सिस्टम में ट्रैक कर लेंगे, ठीक है। राइट। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज हियर, वी कैन से अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल मीन्स पे टू द वेंडर, वेंडर के अगेंस्ट में जो भी सेटअप हमें परफॉर्म करना है, एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी, वी कैन डू इट। But before performing of the accounts payable, just we need to have the control there, right? Yes. फाइनेंशियल अकाउंटिंग को परफॉर्म करने से पहले मास्टर डेटा, हम एमएम के साथ में मास्टर डेटा मीन्स वेंडर मास्टर का कोलरेशन होता है, हम्म, एंट्रीज होती हैं, तो सेम इज हियर। तो हाउ वी मे गो एंड क्लासिफाई द मास्टर डेटा इन एसएपी, vendor account group, vendor number ranges, type of the vendors, we can say the domestic, local, goods supplier, multiple type of vendors control, we can do it from there. तो लर्न करेंगे आफ्टर दैट। बिलिंग मीन्स अगर किसी वेंडर ने बिल किया हुआ है, हाउ वी कैन गो एंड पोस्ट द बिल with the GST, with the TDS, how we may go and perform the same. नेक्स्ट इज आउटगोइंग पेमेंट इज ऑल्सो देयर, अगर वेंडर को अगर हमने कोई पेमेंट की क्लियरिंग की एंट्रीज परफॉर्म की है, तो हाउ वी मे गो एंड परफॉर्म द पेमेंट क्लियरिंग, पार्शियल पेमेंट, रेजिडुअल पेमेंट, setup with the credit note, setup with the advance, multiple type of setups entries we are going to perform for the financial point of view. Account analysis, vendor reconciliations, periodic processing, that is APP, automatic payment program, bulk payment clearing का ऑप्शन भी होता है SAP के अंदर FI में, हम्म, we may go and perform that. Reporting as well, open ledger, clear ledger, all ledger, specific date, specific time, multiple things है हमारे पास जिसको हम हम्म, सिस्टम में ट्रैक कर सकते हैं, we may go and perform that. तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली इन सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है सर। Now the account receivable, that is the customers. हम्म, Accounts payable, that is a part of the P2P, that is a procure to pay. यस सर। P2P cycle is the most important for the MM or the FI also. या, जब हम परफॉर्म करेंगे सिस्टम में, तो उसके लिए हमारे पास O2C का सेटअप भी आएगा। O2C इज फॉर द ऑर्डर टू कैश, दैट मीन्स जब भी हम किसी भी कस्टमर के साथ इंक्वायरी, कस्टमर कोटेशंस, कस्टमर सेल्स ऑर्डर, कस्टमर आउटगोइंग बिल्स, जो भी हम परफॉर्म करेंगे उसको ट्रैक करेंगे सिस्टम में, दैट इज अ पार्ट ऑफ द O2C, ऑर्डर टू कैश। इसमें कुछ पार्ट सेल्स का आएगा, SD का, बाकी हमारा फाइनेंस का परफॉर्म होगा जो हम ट्रैक करने वाले हैं। यस सर। कस्टमर मास्टर डेटा, सेम इज हियर, कस्टमर भी हमारे पास होते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ कस्टमर वी आर हैविंग इट, डोमेस्टिक, गोल्डन, सिल्वर, multiple type of customer we are having it. We'll go and perform the setup for the customer master data, that we can say the customer account group, customer name, number ranges, right? हम्म, पैरेलल अगर हम देखें सिस्टम में, तो हमारे पास another technique, another setup we are having it. What is that? अभी आप SAP ECC में कर रहे हैं, S4 नाम परफॉर्म कर रहे हैं? ECC में सर। ECC, ECC में हमारे पास क्या होता है कि वेंडर या कस्टमर अकाउंट ग्रुप हमने क्रिएट किया, वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट किया फॉर परचेजिंग, यू आर डूइंग इट, वेंडर हम्म, अकाउंट ग्रुप, देन नंबर इज, देन सेटअप ऑफ द पर्टिकुलर वेंडर मास्टर डेटा हम्म, based on that. But in हाँ, SAP S/4HANA, we are having a centralized master data system. Centralized master data system में अगर हम बात करते हैं, what is that? That means vendor, customer or the business partner हम्म, that can be created at a time, यानी एक सिंगल टाइम पे हम इन तीनों के टूल्स को परफॉर्म कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, यस, राइट? दैट इज सेटअप फॉर द बीपी, बिजनेस बिल, पार्टनर परफॉर्म करता है। हम्म, Whatever the T code we are using in SAP S/4HANA, that can be the XK01, FK01, MK01, whatever, for create, change, display block, unblock, जो भी हम परफॉर्म करते हैं। हम्म, Here is an SAP S/4HANA, we are having a central T code, that is a common T code, that is BP. BP के थ्रू ही हम कस्टमर क्रिएट, वेंडर क्रिएट, बिजनेस पार्टनर क्रिएट, चेंज, डिस्प्ले, पेमेंट ब्लॉक, पोस्टिंग ब्लॉक, परचेज ब्लॉक, व्हाटएवर, वी मे गो एंड परफॉर्म इट। तो ये पार्ट भी हम कवर करेंगे इसमें, सॉरी, ये भी कवर करेंगे इसमें पूरा। बिल्कुल कवर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सेटअप ना, यस, right? We'll cover each and everything there, practically as well as theoretically. हम्म, Okay.
Now, customer cash receipting, customer outgoing bill, customer receiving, multiple एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम सिस्टम में परफॉर्म करने वाले हैं और ट्रैक करने वाले हैं, राइट? नाउ द सेटअप इज देयर, रिपोर्ट, कस्टमर बैलेंसेस, जो भी सब सेटअप होता है वो हम परफॉर्म करेंगे, ट्रैक करेंगे। प्रोसेस फ्लो ऑफ द एसेट, एसेट भी एक पार्ट होता है एफआई के अंदर। दैट मींस एसेट परचेज करना, प्रोक्योरमेंट, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, डेप्रिसिएशन, स्क्रैप, मल्टीपल टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। दैट मींस विल गो एंड परफॉर्म दैट procurement of asset, registration, adjustment, transferring, depreciations will perform each and everything there. जो भी ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज हैं जिसको हमें परफॉर्म करना है, ट्रैक करना है, विल डू दैट। ठीक है, ओके। तो पहला दिस द इंटीग्रेशंस, एमएम का भी इंटीग्रेशन एफआई के साथ होता है, एसडी के साथ भी, लाइक एफआई एमएम के साथ जब हम कोई भी गुड्स रिसीव एंट्री परफॉर्म करते हैं, एट द टाइम ऑफ डूइंग हो, at the time the system is going to select the ledger automatically, इसको कहते हैं account determination, automatic account determinations। yes, that means ledger उस मेटेरियल की एक्टिविटीज पर लेजर कैसे हिट हो रहा है, that means we are going to learn that, perform that, how we may go and controlling it। ठीक है, okay। now the profit center, FI and CO, FI is for the financial informations, that is for the legal reporting purpose। FI जो मोस्टली हम यूज करते हैं, that is for the legal reporting purpose। FI is financial informations, legal reporting मान लीजिए, commercial rule of the country मान लीजिए, like जो CAs मान लीजिए, chart of accountant जो भी होते हैं उस डेटा को यूज करते हैं, that we can say the shareholders, सभी उसको यूज करते हैं। CO is for the controlling, controlling means to make a control for the internal accounting purpose। अब इंटरनल अकाउंटिंग के लिए अगर हमें इसको परफॉर्म करना है, ट्रैक करना है, दैट इज अ प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, इंटरनल ऑर्डर, मल्टीपल थिंग्स हैं जो फाइनेंस के लिए हम यूज करने वाले हैं, विल गो एंड यूज दैट। प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग विल लर्न इट, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग विल लर्न इट। नाउ द जीएसटी एंड टीडीएस, every country is using some GST and TDS type of activities। We are having a multiple type of GST, CGST, SGST, IGST, UTGST भी होता है लेकिन ना कम यूज होता है, यूनिटरी वाला। yes, We learn that, and we are having a multiple slab, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। भाई सिस्टम कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है उसको, राइट? तो सिस्टम में हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके बाद सिस्टम इज गोइंग टू कैप्चर इट, कंट्रोल इट। yes, उसका डिटरमिनेशन होता है वो HSN कोड और इन सब के बेस पे, राइट। नेक्स्ट इज TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जिसको हम सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। इसका भी रूल वगैरह कुछ होता है ना, तो TDS का मतलब कि कुछ यस, 50,000 या 50 लाख की बिलिंग होती है उसके बाद ही लगता है, ऐसा कुछ होता है क्या इसका? नहीं, वो जो रूल्स है दैट इज अ सेकेंडरी। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर 50 लाख होता है, अगर हमारे पास जो कोई भी कंडीशंस होती हैं कि अगर 50 लाख से अगर हमारे पास बिलिंग ज़्यादा हुई है, देन वी आर गोइंग टू एप्लीकेबल फॉर द TDS। और बिलिंग के ऊपर भी ये परचेज के लिए, सप्लायर के लिए हम लोग यूज करते हैं। मल्टीपल हमारे पास TDS रिटेंशन भी आते हैं, जिसमें हमारे पास TDS लाइक डिबेट भी होती है, जो LDC वगैरह परफॉर्म करते हैं, लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट वगैरह जो सप्लायर लेते हैं, 2% की 1% डिटेक्ट होना है फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट इज देयर, वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर इट। ओके, ठीक है। we'll learn all the things in a practical mode as well as the theoretical and practical both। We'll do that। Okay, now अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं बिजनेस के लिए। कैरियर पाथ ऑलरेडी वी नो इट, एंड यूजर, एसोसिएट, फंक्शनल ऑलरेडी वी आर डूइंग इन द SAP MM, SAP FI के लिए हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमारे पास मल्टीपल लेवल ऑफ वी कैन से द मल्टीपल मॉड्यूल एंट्रीज नॉलेज होगी, वी कैन परफॉर्म द बेटर सेटअप, बेटर नॉलेज, बेटर पैकेज इन द मार्केट।
Yes. And after that, interview preparations will do it. Like means what all are the questions that can be asked from anyone, right? इसमें जैसे सर ये कंट्रोलिंग में जैसे प्रॉफिट सेंटर आपने कहा था, इसमें प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे हम, है ना? बिल्कुल कवर करेंगे। हुँ। भाई जब अगर हमें सिस्टम में अगर सपोज कीजिए हमने बोला जी इंटरनल अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए हमें ट्रैक करना है। हुँ। भाई इंटरनल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अगर हमें परफॉर्म करना है तो व्हाट इज कॉस्ट सेंटर? कॉस्ट सेंटर सिस्टम में क्या यूज है? उस कॉस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या सेटअप रहेंगे? चार्ट ऑफ अकाउंट एक होता है, मतलब जीएल्स के लिए कंट्रोलिंग एरिया कुछ ऐसा रहता है ना? देखिए, विल परफॉर्म फॉर द कंप्लीट फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। अगर मैं सिंपली वो डिफाइन करता हूँ, कंपनी कोड क्रिएशन से लेकर के आपका चार्ट ऑफ अकाउंट, फिजिकल ईयर वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, फाइनेंशियल ईयर वेरिएंट, टॉलरेंस ग्रुप फॉर द कंपनी, टॉलरेंस ग्रुप फॉर द जीएल, टॉलरेंस ग्रुप फॉर कस्टमर वेंडर, टॉलरेंस group for global parameters. We can say the account group, general ledgers, field setup, like is vendor accounts group, GL to GL entries. We can say reconciliation entries, adjustment entries, cash management, cash flow जिसको हम कहते हैं, like is vendor accounts payable, vendor incoming bill, outgoing payment, down payment, advances जिसको हम कहते हैं. They will perform each and everything there. और एक सर वो तो फंड मैनेजमेंट भी होता है, जैसे फंड मैनेजमेंट होता है पूरा, फंड मतलब कि मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट मॉड्यूल। सेटअप एफआई का ही है, उसी के अंदर वो डिफरेंट मॉड्यूल के अंदर परफॉर्म किया जाता है। फंड मैनेजमेंट में हम परफॉर्म करते हैं लाइक कॉस्ट सेंटर के साथ साथ हमारे पास फंड सेंटर जनरेट होता है। हाँ, फंड सेंटर होता फंड है। सेंटर होते हैं, फंड सेंटर में फंड अपलोड किया जाता है। एफएमबीवीसी टी कोड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लाइक फंड सेंटर में बजट अपलोड करते हैं, रिलीज करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, राइट? तो दैट इज अ सेपरेट मॉड्यूल फॉर एफएम। बजटिंग हमारे पास मल्टीपल तरीके से चलती है। प्रोजेक्ट सिस्टम भी होता है, प्रोजेक्ट सिस्टम भी हम भी बजटिंग कर सकते हैं, विदाउट बजटिंग भी हम इनेबल कर सकते हैं। तो मल्टीपल थिंग्स आर देयर। हाँ, मतलब प्रोजेक्ट सिस्टम भी पैरेलली है हमारे यहाँ, जिस प्रोजेक्ट पे मैं हूँ, तो राइट राइट, मैं वही कह रहा उसमें हूँ। भी बजटिंग होती है, उसमें भी मतलब हाँ। हाँ, देखिए ये सेपरेट मॉड्यूल है। अगर मैं बात करता हूँ एफएम का फंड मैनेजमेंट, ये सेपरेट मॉड्यूल है। कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट सेंटर के जैसे ही सेम हम फंड सेंटर क्रिएट कर देते हैं, उसमें बजट अपलोड करते हैं। और जैसे अभी कॉस्ट सेंटर के अगर मान लीजिए फंड सेंटर नहीं यूज करते हैं, तो बहुत सारी कंपनियां मेरे ख्याल से कॉस्ट सेंटर लेवल पे भी इसको मैनेज करती हैं सर। कर सकते हैं। और एक होता है कि आईओ इंटरनल ऑर्डर्स होते हैं, उसके थ्रू भी मैनेज होता है ना? बिल्कुल, इंटरनल ऑर्डर पर भी बजट अपलोड हो जाता है। तो वो वाला पार्ट हम कवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको परफॉर्म करता हूँ। KO01 या KO03 लेते हैं, तो भी ऑर्डर देख लेते हैं कि हम हमारे पास सेटअप होता है, राइट? तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। जो आपका फंड सेंटर की हम बात करते हैं, दैट इज देयर, जो जहाँ से परफॉर्म होता है, प्रोजेक्ट लेवल परफॉर्म होती है, जनरल लेजर परफॉर्म होते हैं, सेटअप होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं, दैट्स देयर। तो जैसे ये मतलब ये आईओ में 1 बाय 1 एक आईओ के आगे फंड डाला जाता है सर, या इसका भी कोई हायरार्की होते हैं, मतलब टॉप लेवल पे मैनेज करते हैं, उसके अंदर जितने आईओ होते हैं उस पे लगता है? देखिए, इंटरनल ऑर्डर अगर हम बात करते हैं कि सिस्टम में अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज इंटरनल ऑर्डर? इंटरनल ऑर्डर वी आर गोइंग टू ट्रैक द कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एक्टिविटीज। अगर इंडिविजुअल एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए, जो स्मॉल एक्टिविटीज उसको ट्रैक करने के लिए आईओ का यूज करते हैं हम लोग, इंटरनल ऑर्डर का यूज करते हैं। ठीक है। तो ऑर्डर लेवल पे ही बजट रिलीज होता है। और जैसे कि ये जैसे हम एसेट्स जो पढ़ेंगे, तो एसेट मास्टर अलग बना के पढ़ेंगे, उसके साथ आईओ लगाएंगे और उसका डेप्रिसिएशन वगैरह उसी हिसाब से चलेगा, या कैसे, मतलब एसेट अकाउंटिंग? राइट राइट, अगर हम बात करते हैं एसेट अकाउंटिंग का, एसेट अकाउंटिंग में हमारे पास सबसे फर्स्ट आता है एसेट, लाइक चार्ट ऑफ, जैसे अकाउंट हमारे पास क्रिएट होता है, इसी तरीके से हमारे पास क्रिएट होता है चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एरियाज। चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एरिया जो भी हम करते हैं, दैट इज अ ग्रुप ऑफ डेप्रिसिएशन एरियाज। उसके अंदर हम एसेट क्लास, एसेट मास्टर सब कुछ हम क्रिएट करेंगे, विद आईओ के साथ लिंक करेंगे। अगर आपने देखा होगा, एसेट का एक सेटअप आया था हमारे पास। क्योंकि मैंने बताता, जैसे मैं 2 जगह काम किया था। एक जगह जब हम प्रोक्यूरमेंट करते थे, तो एक एसेट मास्टर जब पीओ है ना, उसके साथ ही लग जाता था। बिल्कुल। तो अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी ए यूज होती थी शायद, और ये एक जगह मैंने देखा कि इंटरनल ऑर्डर के साथ लग रहा था। तो दोनों अलग-अलग चीजें हैं, है ना? दोनों अलग है। वो जो एक करके कॉस्ट है, जो पीओ के साथ में हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो एमएम के साथ में हिट कर रहा है, और जो आईओ के साथ में चल रहा है, ये फॉर हमारा सीओ के साथ में हिट कर रहा है।
एसेट्स को। आजकल तो लोग सीओ के साथ ही ज्यादा यूज करते हैं, ए वाला यूज होता है क्या सर? होता है लेकिन लेस यूज होता है। ए वाला भी अभी भी हम यूज करते हैं, पीयू के लिए जो यूज कर रहे हैं, वो सम ऑफ द कंपनीज दे आर यूजिंग इट फॉर द एसेट। जिनके पास जैसा बना होगा स्ट्रक्चर पहले से। राइट 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 राइट। ओके, बाकी और आप सारे जितने भी मतलब नॉन बिजनेस प्रोसेसेस हैं एफआई के, वो सब हम कवर करेंगे इसमें, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल एफआई का अगर हम बात करते टूल हैं वगैरह में क्या होता है सर? देखिए, फाइनेंस बैकग्राउंड तो नहीं है मेरा, मैं टर्म्स बहुत ज्यादा तो नहीं समझता हूँ, बट हाँ थोड़ा सा आप समझा दीजिएगा जब टर्म्स, हाँ ना। देखिए ऑलरेडी अगर मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बैकग्राउंड इज नथिंग। बैकग्राउंड हमें वहां जरूरत पड़ती है जहां हमें कहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो रखा है, 10 साल हमने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, और ऑलरेडी वी नो द एसएपी है क्या, और एमएम में हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। एफ आई एम एम एस डी और एच आर, 4 मॉड्यूल कोर मॉड्यूल होते हैं जो हमेशा हर किसी कंपनी में चलते हैं, और चारों जो भी कंसल्टेंट हैं, चाहे सपोर्ट है, फंक्शनल है, टेक्निकल है, कोई भी है, कोई पैरेलली काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड होकर काम करते हैं, टीम वर्क होता है, इसको हम कहते हैं। एक्चुअली मैं इसलिए सीख रहा था एफआई, क्योंकि मैंने खासकर मैन्युफैक्चरिंग में देखा है एफआई का रोल ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे प्रोक्यूरमेंट हो गई, उसके बाद जो सारा काम हो रहा है सब एफआई में ही हो रहा एफ आई है। में होता है। ओके, हम्म। डोंट वरी, विल कवर ईच एंड एवरीथिंग देयर फ्रॉम स्क्रैच। एफआई का हम पूरा एकदम स्क्रैच से लेकर के कंप्लीट लेवल तक विल परफॉर्म इट, कि हमें करना क्या है, परफॉर्म कैसे करना है, ट्रैकिंग कैसे करनी है, और रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कैसे हो रही हैं, डेटा कैसे एक दूसरे में जा रहा है, टेबल में कैसे जा रहा है, बीकेपीएफ क्या है, जो भी हमारे पास टेबल्स हैं कैसे हिट हो रही हैं, किस तरीके से डेटा हिट हो रहा है, विल कवर ईच एंड एवरीथिंग देयर। और ये मतलब कि पूरा हाना में ही रहेगा, है ना सर? यस यस यस। और ये सिंपल सिंपल फाइनेंस और जो ये हाना एफआईसीओ दोनों एक ही चीज है, अलग अलग है? अलग अलग है, सिंपल फाइनेंस इज डिफरेंट वन, एस फॉर हना इज डिफरेंट वन। सिंपल फाइनेंस क्या है? मतलब उसमें सिर्फ ट्रांजेक्शन है? ट्रांजेक्शन है सिंपल फाइनेंस। मतलब वो एक ऐसे तरीके से मॉड्यूल बना दिया गया बस जबरदस्ती का, मॉडल बना दिया, सिंपल फाइनेंस करके बना दिया, जस्ट लाइक एज अ टैली एंड यूजर्स के लिए है। एंड यूजर्स के लिए। और सर इसमें वो क्या कहते हैं, हम जो ईयर एंड एक्टिविटी होती है, क्योंकि मोस्टली तो सारी एफआई के अंदर ही होती है ना? अब जैसे कि ईयर एक्टिविटीज भी हम परफॉर्म करेंगे, जैसे मान लीजिए जैसे ही हमारा ईयर एंडिंग क्लोज हुआ, उसके साथ हमारा डॉक्यूमेंट टाइप, नंबरिंग, मल्टीपल सेटअप परफॉर्म करना, विल कवर ईच एंड एवरीथिंग देयर। और बैलेंसेस जो भी हैं उसको उठा के बैलेंसेस लेना। बैलेंस, जब ईयर क्लोजिंग होगा तो बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे, पिनल टू बैलेंस शीट। और जैसे कि एक और भी मतलब मैंने देखा है, जैसे एक्यूरल क्या होता है सर? एक्यूरल बोलते हैं कि एक्यूरल पोस्टिंग्स होती है, उस देखिए, एक्यूरल को। हाँ। एक्रूवल और डेफरल होती हैं, दो एंट्रीज होती हैं। लाइक कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जो हमने कर दिए हैं, हम्म। ठीक है, कर दिए हैं, लेकिन अभी हमने पे नहीं किए, पे नहीं किए। राइट। अच्छा। हाँ कुछ हाँ। खर्चे ऐसे होते हैं कि जो कि हमें अभी लेने बाकी है, अभी किए नहीं है, करने हैं आगे, हम्म। राइट। तो मल्टीपल जो इस टाइप की एंट्रीज होती हैं उसको एक्रूवल डिफरल एंट्रीज बोलते हैं, वो ईयर एंडिंग में ही परफॉर्म होती हैं। नहीं, जैसे कई सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें एक्यूरल वो साथ में करते चले जाते हैं, है ना? अब ये वो मतलब एक तरीके से हिसाब किताब रखने के लिए ही होता है वो, एक तरीके से, है ना? एक्यूरल पोस्टिंग जो है कि देखिए, हमें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आपने की पॉलिसी ली हम्म 50 लाख की, कंपनी के लिए ली, हम्म। लेकिन पॉलिसी आपने ले ली है, लेकिन आपको पेड तो 10 10 ईयर तक करना है, हाँ तो वो लायबिलिटीज है, तो आपको पे करनी है, लेकिन अभी की नहीं है, हाँ। राइट। तो इस टाइप की एंट्रीज को मैनेज करने के लिए एक्रूवल और डिफरल का यूज करता है। अच्छा। तो डिपेंड करता है कि कंपनी का जो प्रोसेस है, या मैनेजमेंट है, या फाइनेंस है, वो पैरेलली परफॉर्म कर रहे हैं मंथ बाय मंथ, या ईयर एंडिंग क्लोजिंग पे कर रहे हैं। हम्म। बहुत सारे, अब मैंने अभी ईयर अगर जो एक एग्जांपल लिया था पॉलिसी का, ईयरली एनुअल है, ईयरली परफॉर्म करेंगे, मंथली है तो मंथली चलता रहेगा फाइनेंस में, राइट। ठीक है सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, बाकी तो ड्यूरिंग द कोर्स अगर कुछ ऐसा आता है सर। कोर्स में तो बहुत सारी चीजें आएंगी अभी, हाँ। दैट इज सिंपल। काफी बड़ा एफआई है, मतलब एक यस, दैट मतलब इंट्रोडक्शन था। के डिसीजन में तो नहीं हो सकता सर कुछ। मेरा मतलब कंसर्न यही था कि सारे बिजनेस प्रोसेस जो नोन है वो सब कर लिए जाएं, और क्या कहते हैं,
बाकी तो एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो देखिए सर सारा चीज तो कवर नहीं हो सकता, बट हाँ कि एक थिंकिंग बन जाए कि हाँ ऐसे सॉल्यूशंस होता है तो आदमी ढूंढ लेता है सॉल्यूशन। ये देखिए मैं आपको अभी एकदम फ्रैंक बताता हूँ। आप FIMM SDPP और HR सब कुछ कर लीजिए, आपको जो बेस है उसको में ही जॉब मिलेगा। जब आप हम्म चारों को कर लेते हैं तो हमारे पास लीड की अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ जाती है। हम्म बाकी और कुछ नहीं। अगर मैं कहने लगा हूँ कि या फिर मैं सोचूँ, आई वाज थिंकिंग ऑन लाइक दैट कि लाइक नहीं भाई मैंने FIMM और SD तीनों कर लिए हैं तो मुझे तीनों का जॉब मेरे को ही मिल जाएगा, पैकेज अच्छा हो जाएगा। नो, हम्म टास्क एक ही रहेगा, बट जैसे एक्सपर्टीज मेरे पास होगी आई कैन बी मूव टू दी लाइक लीड्स। राइट। मतलब कि फ्यूचर में भाई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यस, बिकॉज अगर नॉलेज ही नहीं रहेगी तो फिर हम उस एफआई टीम को कैसे मैनेज करेंगे या एमएम टीम को कैसे मैनेज करेंगे। भाई काम होना ही करना है, लेकिन हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी तो आनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ मेटल मैनेजमेंट, मैंने बोला जी मुझे PO क्रिएट करना है, एक STO क्रिएट करना है, हाउ वी गो इट, मुझे STO ही पता नहीं है, PO हम्म पता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं है, हम्म सर्विस PO पता नहीं है, मैं मैनेज क्या करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट लाइक जो भी कंट्रोल है वो देखेगा बंदा, लेकिन एटलीस्ट वो टर्मिनोलॉजी मुझे तो पता होना चाहिए। भाई PO होता क्या, STO होता क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन STO और वर्क ऑर्डर्स? यस। जब तक वो डिफरेंसेस नहीं रहेंगे तो हम नहीं लीड कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई काम तो बंदे को करना है, जो एम्प्लॉय बैठा हुआ है, लीड्स को केवल उसको मैनेज करना है, देखना है कि भाई क्या रहा, कैसे हाँ रहा। कभी फंस जाए तो मतलब इतना निकालने का भी मतलब होना चाहिए, तभी तो बस, लीड है। राइट हाँ। राइट राइट। तो असली अगर लीड का मतलब क्या है, पता चलता है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा है, उसको हम्म पता ही नहीं है FI, उसको MM पता नहीं है। हम्म जब FIMM के जो सामने वाला क्लाइंट क्वेश्चन रेज करेगा तो हाँ वही फंस जाता है ना कि ये इसको डेप्रिशिएट करेगा, ये इसको एक्यूरेल करेगा, अब ये टर्म्स ही नहीं पता है तो फिर ऊपर से ही जाएगा सब कुछ। राइट राइट राइट। तो उसके लिए वो चीज़ें कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। प्रोसेस तो चलता रहता है, प्रोसेस तो कंपनी टू कंपनी चेंज हो जाएगा। हम्म अभी आप जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, मैम का बहुत अच्छा सेटअप है, आपने कंपनी चेंज करते हुए चलता है वहाँ कुछ और कंट्रोल ले हो गए। और इस वजह से इम्प्लीमेंटेशन में एफआई साइड से जो भी चीजें होती है वो सब कवर करेंगे हम, है ना। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन यानी एक प्रोजेक्ट, डमी प्रोजेक्ट कह सकते हैं, लाइव प्रोजेक्ट तो नहीं कहेंगे। लगाता हूँ, एक मिनट। हेलो विक्रम, कैन आई स्टार्ट? विक्रम शायद है नहीं, चार्जिंग लगाने हो गया, चार्जर लेकर। विक्रम आप कुछ कह रहे थे अभी। हाँ हाँ एक सेकेंड, ये बैटरी लो का मैसेज आ रहा था, मतलब कि चल जाएगा काम। नहीं ठीक है। हाँ मैं ये कह रहा था कि सर जैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो उसमें जो भी एफआई के ऑब्जेक्ट है सारे वो सब कवर करेंगे हम लोग, है ना। देखिए जैसे भी हमने स्टार्ट किया था कि भाई हमें परफॉर्म करना है FI की अगर हम बात करते हैं, विल टेक अ डमी प्रोजेक्ट। लाइव प्रोजेक्ट हम इसलिए नहीं कहते, होता लाइव ही है, जो लाइव चल रही होती है चीजें उसी तरीके से हम परफॉर्म करेंगे। डमी प्रोजेक्ट इसलिए हम बोलते हैं, दैट मीन्स डमी है, हम किसी का कॉपी कर रहे हैं, किसी हाँ एक सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं। विल टेक अ वन प्रोजेक्ट एंड विल परफॉर्म ऑल द टास्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। जो भी ठीक है। टास्क हैं हमारे पास जो परफॉर्म हो रखे हैं, विल टेक अ वन प्रोजेक्ट। हम एक कोई कंपनी एक प्रोजेक्ट पिक करेंगे, उसी में सब कुछ परफॉर्म करेंगे, क्रिएट किया हुआ नहीं होगा, आपके सामने सारी चीजें परफॉर्म करेंगे, पेबल से, रिसीवेबल से, वेंडर से, कस्टमर से, GL टू GL पेमेंट, इनकमिंग इनवॉइस, आउटगोइंग पेमेंट, डाउन पेमेंट, एवरीथिंग विल डू इट जस्ट अगेंस्ट यू इन अ प्रैक्टिकल मोड ठीक एंड है। विद द प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। हम्म हाँ मतलब जीएल्स में भी होता है ना, जैसे कि पीएनएल जीएल है, बैलेंस शीट जीएल है, किस केस में कौन से जीएल्स आते हैं। किस टाइप के रहेंगे, कितने टाइप ऑफ GL बना सकते हैं, टाइप क्या है, अकाउंट ग्रुप क्या है, किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, राइट। विल ठीक है। कवर ईच एंड एवरीथिंग। हम्म, ओके ओके सर। ओके, थैंक यू विक्रम। या एडमिन टीम, आर यू देयर? नाउ यू कैन कंटिन्यू। यस। ओके विक्रम, अभी और किसी तरह का कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं क्लियर है, no issue।
ओके, सो जैसे कि सर ने एक्सप्लेन किया ना, एवरीथिंग आपका रियल टाइम बेस ही रहेगा, बस सिनेरियो बेस रहेगा, डमी प्रोजेक्ट बेस। ओके, क्लासेस भी सेम सिनेरियो में ही चलेंगी एंड ओवरऑल कंसल्टेंट लेवल के जितना वर्क रहता है, जो टॉपिक आपको शेयर किए गए ना, वो सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर होंगे। और इन केस आपको कुछ और ऐड ऑन कराना है ना इस टॉपिक से अलग, या जो लाइक आपके पीडीएफ में है मेंशन, उसके अलावा कुछ अगर ऐड ऑन कराना है वो भी आप करा सकते हो, कोई वरी नहीं है। ओके, ठीक है। यस, अगर अभी और कुछ पूछना है मुझसे तो आप पूछ सकते हो। नहीं नहीं, वेरी गुड, नो इशू, जो पूछना था पूछ लिया ओके, मैंने। देन फर्दर प्रोसेस, ओके देन फर्दर प्रोसेस के लिए एक बार तनिष्का मैम से कनेक्ट कर लीजिए। फर्दर प्रोसेस के लिए वो आपको गाइड करेंगी। और सर की जो क्लासेस रहती हैं, वैसे वो टाइमिंग जो रहती है वो इवनिंग की रहती है, आफ्टर 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10। एंड सेम मॉर्निंग में भी है, 6 to 7, 7 to 8, और 8 to 9 लास्ट उनका, 9 से उनका ऑफिस रहता है। तो आप एक बार कनेक्ट कर लीजिए, जो आप जिस टाइम में आप कंफर्टेबल हो वो टाइम एक बार उन्हें अपडेट कर दीजिए, अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं क्लासेस। ओके, ठीक है सर। ऑलराइट, ओके, थैंक यू विक्रम। थैंक यू। थैंक बाय बाय। यू, बाय।